Hello students, now we are going to the next topic, that is vectors. But before starting with vectors, we must go for a brief recap. In the earlier videos, we discussed the term physics, what physics means. Then we described physics as the branch of science which deals with the physical properties of matter. Then we discussed some of the physical properties. Then we moved forward to physical quantities, because the physical quantities represents the physical properties. Then physical quantities are of two types, fundamental and derived. 7 fundamental, rest all derived physical quantities. Now, this fundamental and derived physical quantities collectively are classified into two different types, scalars and vector physical quantities. पिछले वीडियोस में यहाँ तक का डिस्कशन हो चुका था कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है। एक बार फिर से हम रिकैप कर लें, रिकॉल कर लें। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ are those physical quantities which require magnitude only to express them completely. On the other hand, vector physical quantities are those physical quantities which requires magnitude as well as direction to express them completely. Moreover, for a physical quantity to be called as vectors, they must follow the vector laws of addition. So now in this video we are going to start with vectors explicitly. We will discuss vector physical quantities. So first of all, we will look at the methods for representing a vector physical quantity. Here this whole discussion is a general discussion on vectors, and this is applicable to any vector physical quantity. So now see, first we will look at the representation of vectors. Methods, in fact we can say methods for representation of vectors. The very first method to represent the vectors is the pictorial method. Pictorial method. Now, what is pictorial method, you see? And to understand pictorial method, once again you must recall, vectors are those physical quantities which require magnitude as well as direction. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड, यानी कि वो कितना है, मात्रा कितनी है उस क्वांटिटी की, एंड डायरेक्शन, और वो किस दिशा में, उस मात्रा के साथ एक दिशा को बताना ज़रूरी है। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ सम डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड माने कितना और डायरेक्शन माने किधर, इस बात को फिक्स करिए। ये दोनों बातें बतानी पड़ेंगी, तभी ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी किसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो पिक्टोरियल मेथड से अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताना चाहते हैं तो हम एरो की मदद से बताते हैं। वी depict a vector quantity with the help of an arrow. For example, if this is the arrow, then this length of arrow gives the magnitude of vector, and this arrow head, this is called the head of arrow and this is the tail of the arrow. Arrow head gives the direction in which this physical quantity points. So length in
in pictorial method of representing a vector, length of the arrow gives the magnitude of the vector and the arrowhead gives the direction of the vector. Now you can see if this is vector A and I draw another vector B, then you can see if this is vector B, then of course you can say that magnitude of vector B is less than the magnitude of vector A, because the length of this arrow is shorter than the length of this vector, this arrow. So this way we can see the direction, we can represent the direction and magnitude of any vector physical quantity by pictorial method. After pictorial method, we have another method, we can say it Cartesian method. Cartesian method. In Cartesian method, we will represent a vector in terms of unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. But before that, we need to understand what is meaning of unit vector. So for this second method of representing vectors, we will discuss it later on, this second method. First we will start with pictorial method, and after discussing this method and knowing few things about the vectors, we will proceed to the Cartesian method. So for now we are going to discuss the pictorial method and we will look at the type of vectors. So next topic is type of vectors. Very simple things. Number 1, इक्वल वेक्टर्स. यू सी, किसी दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कब कह सकते हैं? दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कब कह सकते हैं? यदि दो वेक्टर्स ऐसे हों जिनका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तभी वो दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे. बहुत सिंपल सी बात है. अब पिक्टोरियल मेथड से अगर देखें, जो कि अभी हम लोगों ने सिर्फ पिक्टोरियल मेथड डिस्कस किया है रिप्रेजेंट करने के लिए किसी वेक्टर को, तो हम अभी जो भी डिस्कशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ पिक्टोरियल मेथड यानी एरो की मदद से. तो अब अगर हम एक वेक्टर यहाँ बनाते हैं ए, मानिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ऐसे हम एरो बना के रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, जैसे फोर्स वेक्टर होता है, तो अगर हम फोर्स कभी भी लिखेंगे एज ए वेक्टर तो उसको ऊपर एरो ऐसे बनाते हैं. ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, ए लिखेंगे ऊपर एरो बनाएंगे, सो ऑन. सो वेलोसिटी लिखेंगे, वी लिख के ऊपर एरो बनाते हैं. दिस इज द वे मेथड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. अगर हम एरो नहीं बनाते हैं और फिर भी ये फोर्स है, तो इसको हम उस फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड कहते हैं. डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है. तो डायरेक्शन है ज़रूर, मगर अभी हम डायरेक्शन पे बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एफ लिखते हैं, तो इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं. या फिर हम एरो बना के साइन बना दें एब्सोल्यूट वैल्यू का, मॉड्यूलस का, तो भी इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं. दोनों तरीके हैं, इस पर हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे. फिलहाल हम देखते हैं इक्वल वेक्टर्स. तो वेक्टर ए ये हुआ और एक दूसरा वेक्टर हम बी बनाते हैं. तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले एरोज की लंबाई सेम है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है. जैसा कि मैंने पहले बताया कि लेंथ ऑफ द वेक्टर गिव्स द मैग्नीट्यूड. और आप देखिए दोनों का एरो हेड भी सेम डायरेक्शन में पैरेलल है. दोनों टू पैरेलल एरोज पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर. Very simple to understand. Now see second type. अब अगर हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर, पैरेलल क्या हो रहा है? पैरेलल वेक्टर. दो वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे? देखिए, एक वेक्टर ए बनाया हमने, एक वेक्टर बी बनाया.
अब देखिए दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन तो सेम है मगर मैग्नीट्यूड डिफर कर रहा है। तो यह दोनों वेक्टर इक्वल तो नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन सिर्फ डायरेक्शन बराबर हो, सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो मगर मैग्नीट्यूड इक्वल ना भी हो, तो इनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल वेक्टर कहते हैं। पैरेलल वेक्टर के बारे में एक बात और बताया जाना ज़रूरी है कि दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री का एंगल होता है। इस पे एक जनरल डिस्कशन हम करेंगे कि किसी भी दो वेक्टर के बीच एंगल से क्या तात्पर्य है, क्या मीनिंग होता है, इसको हम यही समझ लेते हैं। कोई भी दो वेक्टर अगर हम लें, मानिए हमने लिया एक वेक्टर A और दूसरा वेक्टर B, एरो से रिप्रेजेंट किया गया दोनों को। और अब हम आपसे एक प्रश्न पूछें, व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स A एंड B, देन व्हाट डज इट मीन? सीधा मतलब है वेक्टर A के टेल पे वेक्टर B के टेल को ले जाके बिल्कुल एज इट इज रख दीजिए, बिल्कुल इक्वल वेक्टर, वेक्टर B के बराबर एक वेक्टर बनाइए। बराबर मतलब मैग्नीट्यूड भी इतना ही होना चाहिए, लेंथ और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। आप देख सकते हैं तो ये B वेक्टर हो गया, इसके बराबर है, इक्वल वेक्टर्स अभी बताया मैंने आपको। तो दोनों वेक्टर्स A और B को यदि टेल टू टेल रखें तो जो एंगल बनता है दो वेक्टर्स के बीच, यही इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाता है। सो नाउ यू कैन डिफाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एज द एंगल मेड बाय टू वेक्टर्स व्हेन दे आर केप्ट टेल टू टेल। So now this is parallel vector. What is angle between two parallel vectors? You can see, अगर B वेक्टर को उठा के आप यहाँ से यहाँ रखेंगे इसके टेल पे, A के टेल पे उठा के इसके टेल को रखिए, तो आप देखेंगे दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे, पैरेलल हैं, तो 0 डिग्री एंगल बनेगा इनके बीच। थर्ड टाइप इज एंटी पैरेलल वेक्टर। एज द नेम सजेस्ट, एंटी पैरेलल मीन्स अगर इसी वेक्टर B को हम डायरेक्शन को बदल दें, ऐसे कर दें, रिवर्स कर दें, जस्ट रिवर्स, तो अब अगर B वेक्टर को उठा के A के टेल पे आप बनाते हैं या A वेक्टर को उठा के B के टेल पे आप बनाते हैं, देखिए ये A वेक्टर है पैरेलल बिल्कुल इसके बराबर, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज व्हाट? 180 डिग्री। ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए। चौथा टाइप होता है नल वेक्टर। ये नल वेक्टर क्या है? नल मीन्स नथिंग। तो नल वेक्टर का मतलब कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, उसे हम नल वेक्टर बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, अ वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ नल वेक्टर। नेक्स्ट कम्स यूनिट वेक्टर। नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि 1 यूनिट हो, यानी कि मानिए अगर फोर्स वेक्टर है और वो 1 न्यूटन हो उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी डायरेक्शन, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट 1 न्यूटन है, एसआई यूनिट में अगर बात करें 1 न्यूटन है, तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। वेलोसिटी अगर 1 मीटर पर सेकेंड हो, डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो, तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो ये तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का नाम ना लें तो भी इन जनरल हम कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होगा? द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी 1 इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम जे कैप से, और जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप से डिनोट करते हैं। सो यूनिट वेक्टर्स विल कम इन फर्दर डिस्कशन। सो अभी इतने टाइप ऑफ वेक्टर्स आपको बताएंगे जो प्राइमरली आपको जानना ज़रूरी है। फिर अगले वीडियो में हम लोग वेक्टर्स के ऊपर जो ऑपरेशंस हैं उसकी बात करेंगे हम लोग। और टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।